یہ جو بھارت نے فضائی شکست بھارت کو ملی، رافیل طیارے ہم نے گرائے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو ہم ڈرون بھیج دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، ہمارے 15 مقامات پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، جبکہ پاکستان نے ابھی تک کچھ ایسا نہیں کیا ہے۔ تو بھارت یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انٹرنیشنلی بھی رابطے تو ہو رہے ہیں، ممالک جو بھی پاورز ہیں دنیا کی بڑی، وہ کنسرن بھی ہیں اس صورتحال کو لے کر، بھارت کے ایگریشن کو لے کر۔ تو ایک وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے یو ایس کے پاکستانی وزیر اعظم سے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ نائب صدر یو ایس کے، انہوں نے بھی پاک بھارت کشیدگی پر اہم بیان دیا ہے۔ تو اس صورتحال پر ہم ذرا بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سید محمد علی صاحب بہت شکریہ۔ آغاز ہم آپ سے یہ جو بیانات آ رہے ہیں، یا یہ جو رابطہ ہوا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا، وزیر خارجہ سے یو ایس کے، اور نائب صدر کا جو بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کشیدگی میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے، ہم مانیٹر تو اس صورتحال کو کریں گے، لیکن ان دونوں ملکوں کی جو یہ کشیدگی اور یہ جنگ کی صورتحال ہے، اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اور پھر وزیر خارجہ کا رابطہ بھی، ذرا اس پر بتائیے کہ یہ کس طرف جا رہی ہے صورتحال۔ بہت شکریہ زہیب اور نادیہ، آپ نے مدعو کیا اپنے زبردست مارننگ شو میں۔ دیکھیں، مختصراً میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پچھلے 38 سال میں یہ 8واں کرائسس اور کانفلکٹ ہے جو یک طرفہ طور پہ بھارت نے اس خطے میں پاکستان کے خلاف جارحیت کے نتیجے میں شروع کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو 87 میں براس ٹیکس، 1990 میں کشمیر کرائسس، پھر 98 کے نیوکلیئر ٹیسٹ، اسٹینڈ آف 2001-2، اس کے بعد آپ کو سمجھوتا ایکسپریس یاد ہوگی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو ممبئی میں حملے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد پلوامہ، اور پھر آج یہ 8واں کرائسس ہے جو یک طرفہ طور پہ بھارت نے شروع کیا ہے۔ امریکہ کا رول امپورٹنٹ اس لیے رہا ہے کہ اس نے کرائسس کو ڈیفیوز اور مینج کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اس دفعہ ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چاہے صدر ٹرمپ ہوں، چاہے ان کے وزیر خارجہ ہوں، چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، انہوں نے کسی حد تک جو بھارت کی توقعات تھیں وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترے۔ اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 78 سال میں آج بھارت امریکہ کے جتنا قریب ہے اتنا کبھی نہیں تھا۔ وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کو جس طرح کھڑا کر رہے ہیں، کیل کانٹے اور اسلحے سے لیس کر رہے ہیں، کسی اور کو نہیں کر رہے۔ 80 ارب ڈالر کا ان کا دفاعی بجٹ ہے جو کہ چین، امریکہ اور روس کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ تو اس کے باوجود جب بھارت یہ توقع کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ اپنا دباؤ ڈالے گا اور امریکہ نہیں ڈالتا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سبکی اور سفارتی ناکامی ہے بھارت کی، اور پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ دوسری طرف جب ہمارے وزیر اعظم کو فون کیا امریکی وزیر خارجہ نے، تو اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، جو ٹرانسکرپٹ ہے، وہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کشیدگی میں کم کرنے میں وزیر خارجہ صاحب کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھارت میں بھی فون کیا۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بات واضح کی کہ دیکھیں پچھلے 3 دنوں سے مسلسل یک طرفہ طور پہ بھارت کی جانب سے جارحیت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں ان کا کتنا غلط بیانیہ ہے کہ جی ہم نے تو دہشت گردوں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو پنڈی اسٹیڈیم میں کون سے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے کل؟ پورے پاکستان کے طول و عرض میں جو انہوں نے حملے کرنے کی ناکام کوشش کی، جس کو الحمدللہ ہمارے دفاعی افواج نے ناکام بنایا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا بیانیہ بھی غلط ہے۔ لیکن اب جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ کے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہوگی وہ یہ ہے کہ جب الحمدللہ پاک فضائیہ کی شاہینوں نے یوں سمجھیں کہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی ایئر بیٹل، جس میں 100 سے زیادہ طیاروں نے شرکت کی، اور جس میں بھارتی فضائیہ کی 3:1 کی ریشو تھی، اور جدید ترین رافیل طیارے تھے، ان کو نہ صرف مار بھگایا بلکہ ان کی اپنی سرحدوں کے اندر اس میں سے 5 جدید ترین رافیل طیارے چند منٹوں کے اندر تباہ کر دیے۔ تو یقینی طور پہ ان کی جو فضائیہ ہے، اب ان کے اندر یہ اہلیت اور خواہش نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے شاہینوں کا سامنا کرے۔ اس لیے کل انہوں نے ڈرون بھیجے کہ کہیں ابھی نندن جیسے مزید سرکاری مہمان جو ہیں وہ ہماری مہمان نوازی کا کو انجوائے نہ کریں۔ اور پھر آج رات سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا میڈیا اتنا بدحواس ہو چکا ہے کہ پہلے تو بہت سے لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ میں تو ان سے ہمدردی کرتا ہوں کہ جناب ان کی ذہنی حالت یہ ہے کہ ان کو خواب میں بھی پاک فضائیہ اور ہمارے F-16 نظر آ رہے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے لانچ ہی نہیں کیے ہیں۔
शाहीनों से डरे हुए, वो शाहीन आए, पाकिस्तानी नजरें उनकी आसमान पे। बिल्कुल, आप देखें, अभी मैं आपको ताबीर करता हूं, तारीखी ताबीर। शेक्सपियर की एक नज्म है, उसमें वो कहता है कि जब सलीबी जंगों के दौरान जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इतना खौफ था जो मगरबी अफवाज थी कि उनकी माएं रात को बच्चों को डरा के सुलाती थी कि सलादीन आ रहा है, आप सो जाएं। तो यूं लगता है कि पाक फजाइया से भारतीय माएं अपनी बच्चों को डरा के सुला रही हैं, लेकिन उनको नाइट में, रात को ख्वाब में भी आ रहे हैं कि F-16 आ रहा है और JF-10C आ रहा है, JF-17 आ रहा है, और वो ख्वाबों में ही उनसे लड़ रहे हैं और ख्वाबों में ही उनको गिरा भी रहे हैं, जबकि पूरा आलमी मीडिया एक्सपोज कर रहा है, उनके ऊपर हंस रहा है। और मैं समझता हूं कि ये वॉर जो है ना, ये भारतीय फौज नहीं, असल में बॉलीवुड लड़ रही है। तो मेरे ख्याल में इनको अपना दिफाई बजट बॉलीवुड पे लगाना चाहिए, ताकि उनके लोगों को रोजगार भी मिले और वो काम लगा रहे हैं सर, जब तो ये हाल है, वो लगा रहे हैं उसमें, जब ये हाल है। मोदी जी की परफॉर्मेंस देखी थी जो वो 2 खवातीन को ले आए थे संदूर लगा के, उनका बस नहीं चला कि साथ 2 आइटम नंबर भी कर दें। नहीं, और ये भी है वो जो राफेल, मोदी तड़प रहा था कि उन खवातीन के साथ एक डांस भी उसका हो जाए, एक आइटम नंबर हो जाए। इतनी अदाकारी और इतनी घटिया अदाकारी, वाकई लग रहा है कि मतलब ये कुछ ड्रामा चल रहा है। उनके एंकर्स जो हैं, उनकी स्क्रिप्ट जो है बॉलीवुड वाले राइटर्स लिख रहे हैं, आपको पता है जी, वही लिख रहे हैं। उनकी जबान अगर आप सुने तो बिल्कुल आपको लगेगा कि ये तो सनी देओल की मूवी का स्क्रिप्ट चल रहा है, ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो जवान के डायलॉग नहीं थे, पकड़े जा रहे हैं और जुमले पकड़े जा रहे हैं, डायलॉग। आप ये देखिए कि वो राफेल तैयारा जब आया था, उन्होंने कहा कि पुलवामा में काश मेरे पास राफेल तैयारा होता तो ये पुलवामा वाला वाकया ना होता। फिर वो तैयारे आए और वो फुटेज भी है किस तरह आरती उतारी जा रही है उस तैयारे की। जी जी, और उसको बिल्कुल नींबू भी थे टायर के पास, नारियल भी फोड़े गए। वो ये भूल गए कि उसको चलाने का भी तरीका है, कितनी टेक्नोलॉजी आप ले लें, चलाने का तरीका और वो जज्बा कहां से पायलट में लाएंगे। चलाने वाला पाकिस्तानी जज्बा हो तो फिर बात बनती है। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था, बैनुल-अक़वामी सतह पे उनका मजाक इसलिए उड़ रहा है कि जब डेजोल्ट कंपनी खुद इसका एतराफ कर रही है, फ्रांस का जो मुस्तनद तरीन अखबार है लीमोंड, वो खुद न सिर्फ इस बात का एतराफ कर रहा है बल्कि भारतीय फजाइया की नाकिस कारकर्दगी पे तनकीद भी कर रहा है। मार्टिन बेकर जो कि कंपनी है जो कि इजेक्शन सीट बनाती है, वो अपनी परफॉर्मेंस को प्रमोट कर रही है कि देखें जिन पायलट की जान बच गई, जिनके जहाज गिरे हैं। तो ये वो सबूत हैं। और सबसे बड़ा सबूत ब्लूमबर्ग ने ये बताया है कि जो यूरोप की सबसे बड़ी और बेहतरीन तैयारा साज कंपनी डेजोल्ट जो कि बनाती है राफेल, उसके शेयर्स आलमी मंडी में गिर रहे हैं। तो और आपको इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि जो मगरबी ताकतें कील कांटे और हथियारों से भारत को लेस कर रही थी, अरबों डॉलर के असलाह दे रही थी, खुद उनके तजारती मफादात पे इतनी बड़ी जद पड़ रही है, इतने गैर मोहतात, गैर जिम्मेदाराना अंदाज में जिस तरह भारत उनकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों को जाया कर रहा है। और एक झड़प में आप देखिए पाक फजाइया के शाहीनों ने उनके ऊपर मुकम्मल 1 घंटे के अंदर एयर सुपीरियरिटी हासिल कर दी, जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए कि उनके पायलट्स अब नहीं लड़ना चाहते पाक फजाइया से। अब इसलिए वो मजबूर हैं ड्रोन भेज के अपने अवाम को ये कन्विंस करें। और सर गलत बात है कि जी कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया, एयरपोर्ट को हमने तबाह कर दिया। देखें जी समुंदर में भारतीय शिप जो हैं, नेवी हैं, निशाना ताने खड़ी हैं। अरे भाई, तो तुम पेशावर पे हमला कर दिया और अब कोयटा पे मार्च कर रही है। ये कोई फिल्म देख रहे हैं और वो असल में आप देख ही नहीं रहे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि आपने हमारे चैनल्स बंद किए हैं। आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आपको कोई सनी देओल की घटिया फिल्म दिखाई जा रही है, क्योंकि ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन कितनी फॉल्स रिपोर्टिंग कि एक एनालिस्ट, एक जर्नलिस्ट के कुछ अपने भी एथिक्स होते हैं, एक इंसान का अपना एक ज़मीर भी होता है, कोई शर्म नहीं आती। अच्छा, बिल्कुल सईद भाई, ये मुझे बताइएगा कि अब शुरुआत तो उन्होंने राफेल से की और वहां उन्होंने हजीमत उठाना पड़ी उन्हें, फिर ड्रोन तक आए। अब मुमकिन तौर पर आप क्या समझते हैं भारत की क्या हिकमत अमली हो सकती है इन 3-4-5 दिनों के अंदर? देखें, बुनियादी बात मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि देखें पिछले 4-5 दिनों में क्या हुआ है। 3 चीजें हुई हैं। पहले जब हमने उनके जो राफेल तैयारों को जाम किया, फिर हमने उनको मार गिराया, और जब उनके 30 के करीब ड्रोन्स भी हमने गिरा दिए, तो फिर अब वो इतने बदहवास हो गए हैं कि वो अवाम को झूठे नैरेटिव जो है उसके अलावा कुछ नहीं बेच सकते। जी अच्छा, और ये ड्रोन का जरा मुझे बताइएगा, कल से ये बहस चल रही है
कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन आ गए और कैसे आ गए, क्यों आ गए, फिर गिराने की टाइमिंग क्या थी, जल्दी क्यों नहीं गिराया, बाद में क्यों गिरा दिया। जरा आप भी इसकी वजाहत करें, आपको आपकी एक्सपर्टीज भी है इन मामलात में, कहिएगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये पाक फजाइया की और हमारे डिफेंस सिस्टम की, एयर डिफेंस सिस्टम की। जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी दो वजूहत हैं। पहली बात ये है कि ये एक हकीकत है कि पिछले 8-10 साल के दौरान दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगें लड़ी गई हैं, मुख्तलिफ महाजों पे ड्रोन्स का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया है। चाहे वो अजरबैजान नगोर्नो कराबाख का कॉन्फ्लिक्ट हो, सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट हो, यूक्रेन वॉर हो, रिसेंटली भी जो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी रही, उसमें ड्रोन्स को बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसी इंस्पिरेशन के तहत मैं समझता हूं भारत ने जब एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान पे 30 के करीब ड्रोन्स भेजे, तो आप देखें कि हमने वो तमाम ड्रोन्स जो हैं इंतहाई कामयाबी से गिरा दी। अच्छा, इसका मतलब टेक्निकल और मिलिट्री लैंग्वेज में ये है कि परसों हमने काइनेटिक तरीके से अपने शाहीनों के जरिए से उनके जदीद तरीन सफ़े अव्वल के तैयारों के खिलाफ 1 घंटे में एयर सुपीरियरिटी अचीव कर ली थी। ठीक है। तो कल जब उन्होंने ड्रोन्स के जरिए से पाकिस्तान पे हमला किया, तो हमने उनके 30 के करीब ड्रोन्स को सॉफ्ट किल यानी कि नॉन काइनेटिक तरीके और चंद काइनेटिक हथियारों के जरिए से मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाया और उनको, अपने मुल्क को और अपनी फजाओं को बड़े नुकसान से बचाया। अच्छा, ये भी कुछ सस्ते ड्रोन नहीं है। ये एक ड्रोन जो है तकरीबन $10 मिलियन का होता है। तो आप देखें कि एक दिन के अंदर मजीद $300 मिलियन का असलहा इन्होंने पाकिस्तान पे जाया कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो अल्लाह की मेहरबानी और कौम की हिमायत के साथ न सिर्फ जज्बे जहाद, जज्बे शहादत के साथ मालामाल हैं, बल्कि फनी महारत, चाहे वो काइनेटिक डोमेन में हो, चाहे नॉन काइनेटिक डोमेन में हो, हर डोमेन में हम अल्हम्दुलिल्लाह भारत को डोमिनेट कर रहे हैं। और उनके खौफ का सर ये आलम है कि इनके जो बिग शॉट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं अपनी फैमिलीज के साथ। अंबानी भाग गया से अपने पूरे खानदान, और अजीब से वो जो उनकी बहू और वो उनके मामलात हैं, आपको पता ही है। ये वो भी, उनको भी पहले तो मैं सबसे छोटी बहू को पकड़ा होगा, छोड़ मेरी बीवी, तू तो आना मेरे साथ, वो उनको भी लेके भाग गए हैं, बेटे को लेके गए। अच्छा, और उनको भी लेटे गए होंगे। इसके अलावा और भी जो हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं, दे हैव लेफ्ट द कंट्री। फियर है, उनको पता है कि शाहीन आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पाकिस्तान का रिस्पांस भी इससे बताइएगा, क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं ना कि जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी ये रिस्पांस। बेशक बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है इस वक्त ऑलरेडी। देखें, ये 4 महाजों पे जंग लड़ी जा रही है। एक इंफॉर्मेशन का महाज है जिसमें माशाल्लाह आप जो है, आप जैसे जो एंकर्स और सहाफी हैं वो दुनिया को हकीकत बता रहे हैं और दुश्मन के झूठ का जो है जी सर, हमें इसलिए बैन भी कर दिया उन्होंने, कर रहे हैं। बाकी चैनल्स के बात किया लेकिन बैन कर दिया। वो दूसरी डोमेन जो है वो सिफारती डोमेन है, जिसमें आलमी सतह पे तमाम ताकतों को हम बता रहे हैं भारत की जो तमाम गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी जारियत की कोशिशें हैं। हमारे मासूम बच्चे, 7 साल के बच्चे को शहीद करना कोई दहशतगर्दी है के खिलाफ जंग है। और फिर तीसरा महाज जो है वो कानूनी तौर पे भी हमने बता दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी से निकलने का उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अब जो आखिरी मिलिट्री महाज है उसमें भी आप देखें कि हमारे शाहीनों ने किस तरह फौरी तौर पे उनको अपने अवाम और आलमी बरादरी के सामने शर्मिंदा किया है। तो अब लेकिन ये बताना जरूरी है कि हमने उनकी गलत फहमी को दूर करने और वो जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का उनको महंगा सबक 6 साल पहले दिया गया था, अब यूं लगता है कि उसको मजीद दोहराने का, उनको याद दहानी का वक्त आ गया है। क्योंकि लातों के भूत आप जानते हैं कि बातों से नहीं मानते। हमने बहुत सब्र सब दिखाया, लेकिन 30 से ज्यादा पाकिस्तानी मासूम शहरियों की जो शहादत है, इसमें जिस तरह कहा गया हमारी फौजी और सिविलियन क़यादत ने कि उनके हर खून के कतरे का उनको हिसाब चुकाना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है हम ऐसा सबक उनको सिखाएंगे कि न सिर्फ ये कि मोदी साहब का जो कद काठ है, 56 इंच का सीना है, वो अवाम के सामने सुकड़ जाएगा, बल्कि आलमी सतह पे भी जो ताकतों को गलत फहमी है कि ये एक सुपर पावर को कंटेन करने के लिए खड़ा किया जा सकता है, वो भी उनकी हकीकत को बहुत जल्द बहुत शुक्रिया।